علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں آمنہ جن جو ہمیں ساتھ موجود ہیں سونیا ملک، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، دفاعی ایگریمنٹ ہے، ڈیفینس سے ریلیٹڈ ہے. اور کل امپورٹنٹ دن تھا، وہ نہ صرف پاکستان اور سعودیہ کے لیے بلکہ ساتھ ہی ساتھ انڈیا کے لیے بھی اہم دن تھا. وہ اس لیے کہ ان کے پرائم منسٹر مودی جی کا جو برتھ ڈے تھا، اور پھر ان کو برتھ ڈے پہ سرپرائز ملا ہے سعودی عرب کی جانب سے. محمد بن سلمان نے جو سرپرائز دیا ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے ان کو ایسا سرپرائز ملا ہوگا. اور وہ تل ملا گئے، اور سارے کے سارا جو ان کے برتھ ڈے کی سیلیبریشنز چل رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی ٹویٹر پہ، وہ ری ٹویٹ کر کے سب کو پرسنلی تھینکس بول رہے تھے مودی جی، اور اس کے لمبا چوڑا کیپشن لکھ رہے تھے. لیکن مجھے پھر جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا، اس کے بعد ان کے ٹویٹر سے خاموشی چھا گئی. سونیا میرے ساتھ موجود ہیں. سونیا، ذرا پبلک کو بتائیں کہ کیا سین ہے، یہ کیا ایگریمنٹ ہوا ہے، اس سے پاکستان کی امیج جو دنیا بھر میں کیسے سامنے آیا ہے؟ تھینک یو آمنہ. اچھا، یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ واقعی ایک اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جس طرح وزیر اعظم گئے ہیں وہاں پر ان کو جو پروٹوکول ملا ہے اور جس طرح ان کا ویلکم کیا گیا ہے، تو یہ ایک پاکستان کے لیے بہت پراؤڈ کی بات ہے کہ ان کا اگر وزیر اعظم ہے ان کو اتنا پروٹوکول دیا گیا ہے. باقی بات کریں معاہدے کی، تو معاہدہ بھی ایسا ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس کی مطلب وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اس طرح کا کوئی اچانک سے کوئی معاہدہ سامنے آئے گا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی کنٹری ان دونوں ممالک پہ، کسی بھی ایک کنٹری پہ اگر کوئی حملہ کرتی ہے تو وہ دونوں کنٹری پہ حملہ تصور کیا جائے گا. اٹس مین کہ یہ دونوں کنٹری اب یکجا ہو گئی ہے. تو آپ نے ساتھ ہی انڈیا کی بات کی، تو مجھے لگتا ہے انڈیا کے جو اب جو دن چل رہے ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں. جس طرح جو امریکہ نے ان کو جیسے آنکھیں دکھائی ہیں اور امریکہ نے ان کو بیک فٹ پہ لے کے گئے ہیں، اور جو ٹیرف لگایا ہے، یہ ساری چیزیں، پھر جو ابھی جو میچز ہو رہی ہیں اس میں جو ان کو جو چاہ رہے تھے کہ بائی کاٹ کریں، لیکن وہاں پر جو وہاں کے جو چیف گیسٹ تھے وہ محسن نقوی تھے جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں. تو یہ میں کہتی ہوں کہ انڈیا کے لیے ہم کہیں کہ ابھی بھی موقع ہے کہ وہ مطلب جتنا وہ اپنے آپ کو شوخہ کر کے اور وہ مطلب اکڑ دکھاتے ہیں، تو ابھی بھی موقع ہے کہ وہ اپنے جو پاؤں ہیں وہ زمین پہ ہی رکھیں. تو دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی میں کہہ سکتی ہوں کہ کامیابی ہے، جس میں اور میں چاہتی ہوں کہ یار یہ ایک ایشین بلاک بننا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اسلامک کنٹری کے ساتھ بنائیں، بلکہ ایشین بلاک بننا چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں ایشین بلاک میں جو آتے ہیں، ہم وہ ایک ایشین بلاک بھی بنائیں کہ کبھی کوئی اس طرح کا وقت آتا ہے تو ہم سب جو کنٹریز ہیں وہ یکجا ہو. اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے اپنا رویہ بہتر کرے، تاکہ ان کے ساتھ بھی معاملات بہتر ہو سکے. کیونکہ جیسا بھی ہے انڈیا جو بھی ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو نفرتیں ہیں ان کو زیادہ ہم ہوا نہ دیں، بلکہ ان کو بھی چاہیے ان کی طرف سے بھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے ان کی طرف سے کبھی بھی ایسے امن کا پیغام یا اچھے الفاظ نہیں ادا کیے گئے پاکستان کے لیے. لیکن ہم اب بھی کہتے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کے لیے مطلب دل صاف کر کے رکھے، تاکہ آگے بہت سی مطلب ایسے مطلب موقع آنے ہیں، اقتصادی جو ہمارے معاملات ہیں، معاہدے وہ آگے آنے ہیں، تو اس میں اپنے دلوں کو صاف رکھیں تاکہ بہتری کی طرف جائیں. دیکھیں، آپ اپنا دوست دشمن جو دور کے وہ تو بدل سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا نیبرنگ کنٹری نہیں بدل سکتے. تو انڈیا کو ان 75 سالوں میں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک پاکستان کے ساتھ ہماری سرحد پرامن نہیں ہے، وہاں سے ٹریڈ شروع نہیں ہو جاتی، ہم سارے جو نئے پروجیکٹس ہیں وہ نہیں مل کے ساتھ شروع کرتے، تب تک انڈیا آگے نہیں بڑھ سکتا. انڈیا کو ایک خوش فہمی تھی کہ شاید وہ اس خطے کا چودھری ہے. وہ آپ نے کہا ہے نا کہ سارے سب کو ایک بلاک بنانا چاہیے، ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے. وہ ساتھ مل کے اس شرط پہ بیٹھنے کو تیار تھا کہ اس کو ایک لیول جو ہے اوپر رکھا جائے، یعنی کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک سطح پر بیٹھ کے کام نہیں کرنا چاہ رہا. اس کو جو یہ چودراہٹ لے ڈوبی ہے نا، اس کی آنکھیں کھل گئی. اور سب سے امپورٹنٹ بات، وہ انڈیا جو کہ پاکستان کے لیے دنیا بھر میں ایک امیج بنا چکا تھا کہ یہ ٹیررسٹ ہے، یہ بھیک منگے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ان کی کوئی بھی اپنی کامیابی نہیں ہے. تو یہ جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں جو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، جو انڈیا کو ایسا جواب دیا کہ انڈیا بھاگا امریکہ کی طرف سیز فائر کے لیے، اس کے بعد سے پاکستان کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہو گئی. اس کے بعد سے ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل کو جو ہے وہ ٹرمپ صاحب جو سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے، وہ بلا کے وہاں پر کھانا بھی کھلاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک 1-on-1 میٹنگ کرتے ہیں. اس کے بعد اب سعودی عرب کے ساتھ اس طرح کا ایک ڈیفینس کو لے کر ایگریمنٹ ہونا،
इंडिया को ये सारा क्रेडिट मैं समझती हूँ कि जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान की साख को बहाल किया। मोदी जी का ये सर जाता है सारा चेहरा कि पाकिस्तान का इमेज जो आप बना चुके थे, पाकिस्तान सर्वाइवल की जंग लड़ रहा था, पाकिस्तान तो ये अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा, चीख रहा था पाकिस्तान दुनिया को कि ये जो इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है वो गलत है। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि खुद ही भी जो अपना प्रोपेगेंडा किया उसको तोड़ा और खुद मार भी खाई, राफेल भी अपने गिराए, अपने सिपाही भी मरवाए, अपनी औरतों को विधवा भी करवाया और साथ ही साथ जो है वो सफारती नाकामियाँ भी उसकी देखने को मिली। जो आपके जयशंकर साहब हैं वो दुनिया भर में जो है वो बड़ा अकड़ की चलते थे। आप बताएं कहाँ गए उनके सफारती ताल्लुकात अमेरिका के साथ, कहाँ गए उनके सफारती ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ, टर्की के साथ, उसके रशिया के साथ। पहले इनको खुशफहमी थी कि दुनिया सारी इनके साथ खड़ी और पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है, ये एक उन्होंने इमेज बनाया था। लेकिन जंग हुई, जंग में टर्की सामने खुल के आ गया पाकिस्तान के साथ, बैक पे आपको पता है चाइना था और रशिया की तरफ जब अमेरिका ने तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा, अमेरिका जो है न्यूट्रल रहा। लेकिन इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसके साथ कोई एक भी मुल्क नहीं खड़ा था जंग के दौरान। तो उस आइसोलेशन का शिकार इंडिया ने जंग में दुनिया को बताया कि वो खुद है। अब जो जा रहा है रशिया की तरफ और अमेरिका और रशिया दोनों उसके हाथ से निकले हुए हैं। तो इसको सोनिया आप देखें कि ट्रंप और मोदी के पहले जो ताल्लुकात थे वो भी हवा हो गए। अब वो माय डियर डोनाल्ड ट्रंप जो वो कहते थे मोदी साहब वो भी नहीं कह पा रहे और मेरे ख्याल में टैरिफ भी लगवा लिया अपनी कंपनीज का, अपनी ट्रेड का भी नुकसान उन्होंने किया। और साथ ही साथ इंडिया को, वो इंडिया जो अपने आप को सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कहता था और कहता था कि हम शायद बहुत तेज़ी से एशियन टाइगर अपने आप को कहते थे, चाइना के साथ कंपैरिजन करता था, उसका तो कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहा। अब ना ये देखो दुनिया का दस्तूर है, जो चाहे इंसान हो चाहे कंट्री हो, वो हर कामयाब लोगों के साथ चलना पसंद करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है आप चाहेंगे कि आप ऐसे लोगों के साथ आगे बढ़ें जिससे आपको भी फ़ायदा हो। अगर जिस तरह का इंडिया ने बिहेवियर रखा है, आप बाकी कंट्रीज ज़ाहिर बात उन्होंने आगे बढ़ना है, वो इंडिया को थोड़ी ना देखेगा कि इंडिया क्या चाहता है, इंडिया की मतलब विश क्या है, वो थोड़ी ना इसको देखेंगे। वो तो ये देखेंगे कि हमारी इकॉनमी कैसे बढ़ सकती है, हम किसी के साथ, किस कंट्री के साथ कैसे कारोबार कर सकते हैं। अब आप देखें कि यूक्रेन को कितना सपोर्ट किया है अमेरिका ने, लेकिन जहाँ पर आप उसको दिख रहा है कि भाई मैंने आगे किस तरह बढ़ना है, तो उन्होंने यूक्रेन के सदर को पिछले जो हम देखेंगे पीछे जो उनकी इंटरव्यूज हुए, मुलाकातें हुई, उन्होंने मतलब स्ट्रेटली उनको कह दिया कि भाई आप अब बस कर दिया, अब बस इससे ज़्यादा और नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि हर कंट्री, हर इंसान चाहता है कि वो कामयाब लोगों के साथ चले। बाकी मैं कहती हूँ कि इंडिया को सबक सीखना चाहिए। मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती वो क्यों इस तरह का बिहेव करते हैं। अभी अपने ही राफेल गिरा के इतनी जिल्लत और रसवाई का सामना करने के बाद भी जब क्रिकेट में उनके अपने जो कप्तान हैं वो ये फिर पहलगाम के वाक़ये को दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, इट्स मीन कि आप दोबारा से अपनी नाकामी को हाईलाइट करवाना चाह रहे हैं। फिर आपने वहाँ पर जो बिहेवियर शो किया, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर टीम है उनके साथ आपने हाथ नहीं मिलाना, ये वो, मतलब आप फिर वही चीज़ें रिपीट करना चाह रहे हैं। और इन तमाम सिनेरियो में दोबारा जिल्लत और रुसवाई सिर्फ आपकी हुई है। लोग जो मतलब थोड़ा सा उन्होंने इस चीज़ को रोका था, जो थोड़ा स्टॉप हुए थे, दोबारा मीम्स बनाना शुरू हो गए, फिर आपको राफेल के जो है वो ताने देना शुरू कर दिए। तो ये इसके जो आप खुद ही यार कैसे करें, इतने महंगे उनके फाइटर थे आ रहे थे और पाकिस्तान राफेल हंटर है तो उनको दुख तो होगा ना, दुख होगा। वैसे जिस तरह उनको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा, मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा उनको पहलगाम पे बात करनी चाहिए या दोबारा जंग पे बात करनी चाहिए, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया का दौर है, जब आप टॉपिक छेड़ोगे उतना ही आपने दलील होना है। तो इससे बेहतर ये है कि आप मतलब काम की तरफ जाएं, आप अपनी इकॉनमी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। क्योंकि इंडिया जिस स्टेज पे, जैसे आपने भी बताया कि पहले अमेरिका के साथ जैसे उसके ताल्लुकात थे, इवन के चाइना के साथ, और मैं जो इंडिया ने जो अपना अच्छा दोस्त बनाया भी इसको, इसराइल को, जो पहले ही जलील हो रहा है, ठीक है, वो पहले फ़लस्तीन इतना छोटा मुल्क है, मतलब एक स्टेट है, उनके साथ उनसे जलील हो रहा है, वो जैसे भी है वो उसके मुकाबले में कम है, लेकिन उन्होंने फिर भी उससे इंडिया की पोजीशन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि इंडिया एक तरफ ऐसे स्टेज पे खड़ा है कि रशिया के ब्लॉक में खड़ा हो रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका है। अब आप अपने मुल्क के अंदर की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर वो इसराइल को सपोर्ट करे, और बाहर जाके अगर हम बात करें तो उसकी ब्लॉक में रहने की मजबूरी है कि रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है वो इसराइल को सपोर्ट करे। तो इंडिया की डुअल पॉलिसी जा रही है, वो अपने लोगों को भी उल्लू बना रहा है, वो अपनी सफारती जो उसकी पॉलिसी चल रही है वो कंफ्यूजन का शिकार है। अब इंडिया अपने लोगों को कह रहा है कि हम इसराइल के साथ जो है वो खड़े हैं, फ़लस्तीन के साथ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को बाहर ये मतलब अपने ब्लॉक को ये यकीन दिलाने करा रहे हैं कि हम इसराइल के साथ नहीं खड़े। इसराइल, जाहिर सी बात है, इसराइल और अमेरिका एक पेज में, तो
इंडिया इस वक्त जो है वो उसके साथ ये होना ही था। 2 कश्तियों के सवार जो है ना वो ऐसे ही फिर रुसवा होते हैं, ऐसे ही जलील होते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने चाइना के साथ इतने अरसे से दोस्ती रखी हुई है और उसके ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहे, लेकिन कभी भी ये स्टेज नहीं है कि चाइना जो है वो किसी मुश्किल में पाकिस्तान को छोड़ के भागा हो। लेकिन अब रशिया को देखें, कभी भी उसने अभी जो पहलगाम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसके बाद जो उनकी धुलाई हुई पाकिस्तान से, तो रशिया की तरफ वो देखते ही रहे। रशिया ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। तो अगर तो इंडिया यूक्रेन के वक्त रशिया का साथ दे देता तो इंडिया यूक्रेन और रशिया वार के दौरान जो है मोदी ये ना कहता कि हम इसमें न्यूट्रल है और दोनों मुल्कों को ये करना चाहिए, तो रशिया भी इस तरह का कोल्ड स्टेटमेंट ना देता। तो खैर सोनिया, मोदी का बर्थडे कैसा रहा होगा फिर कल? ये फिर आपको मोदी से ही पता करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपको पता है उनकी जो एक नेचर है हर चीज़ को वो बढ़ा के बताने की, और थोड़ा मुझे लगता है वो थोड़ा आर्टिस्ट टाइप के एक्टर हैं, मतलब वो सी एक्ट भी कर रहे होते हैं, नहीं भी वो चीज़ हो रही थी उसको भी एक्ट करके बता रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी वो जो आप बता रही हैं खामोशी, ट्विटर पे खामोशी और हर जगह खामोशी, ये वाज़ेह तौर पे पैगाम दे रही है कि ये जो अचानक से मुआहिदा हुआ है ना, ये उनका काफ़ी एक सरप्राइज रहा है और बहुत बड़ा गिफ्ट रहा है उनके लिए, उनके बर्थडे के लिए। तो ये फिर उनको खुद भी थोड़ा सा वो बताना चाहिए कि मेरे ख्याल में जो इंडियंस आते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में वो बताएं कि ये वो थोड़ा करीब है अपने मोदी जी के और उनके प्राइम मिनिस्टर है, तो वो बता दें हमें कि उनको कैसा फील हो रहा होगा कल उन्होंने केक काटा है नहीं काटा, और साथ में ये बता दें कि अगर उन्होंने केक काटा है उन्होंने खाया तो उनको केक मीठा लगा कि नहीं लगा। अच्छा आमना, मैं आपके यहाँ पर आपकी काफ़ी इंडियंस जो हैं वो भी मतलब आते हैं, फॉलोअर्स आते हैं, वो मतलब कमेंट्स वगैरह करते हैं। मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ठीक है, हर इंसान चाहता है वो अपने मुल्क को सपोर्ट करे, हम यहाँ पर भी अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें लगता है कि हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं या कुछ जो भी हैं मतलब जो हमारे स्टेट को चला रहे हैं, अगर वो कोई गलती करते तो हम उनको हाईलाइट करते कि यार यहाँ नहीं, यहाँ गलती हो रही है। तो ये गलतियों को हाईलाइट करने का बेसिक मकसद ये होता है कि वो उससे अपनी असलाह करें। अब अगर आप अपने मोदी जैसे वज़ीर आज़म को सपोर्ट करना चाहेंगे तो इट्स मीन कि आप अपने मुल्क में बेहतरी नहीं लाना चाह रहे, क्योंकि ये पूरी दुनिया को पता है कि आपकी आवाम जो है वो कैसे सरवाइव कर रही है। मोदी के जो भी वो जो स्टेप उठाते हैं या वहाँ पर जो सिखों के साथ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया को पता है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने मुल्क को ज़रूर आप डिफेंड करें, लेकिन जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके वज़ीर आज़म गलतियाँ कर रहे हैं, आप कम से कम उसको भी हाईलाइट करें। आप क्यों नहीं आप सीखते? आप ज़रा बांग्लादेश से सीख लें, आप श्रीलंका से सीख लें, आप नेपाल से सीख लें, जिन्होंने अपने जो स्टेट के वो लोग जो उनकी स्टेट चला रहे हैं, अगर वो गलतियां करते हैं, करप्शन करते हैं या कुछ गलत स्टेप उठाते हैं तो उसको हाईलाइट करते हैं। तो बाकी आप ठीक है अपने मुल्क को सपोर्ट करें, हम भी अपने कंट्री को सपोर्ट करते हैं। जहरी बात है, जहाँ बात जंग की आएगी, जहाँ बात अपने मुल्क की आएगी तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जहाँ पर आपके जो अपने जैसे वज़ीर आज़म, जैसे मोदी जैसे वज़ीर आज़म इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं जो मुल्क की मैशियत को तबाह कर रहे हैं, मुल्क की एक इमेज को तबाह कर रहे हैं, तो कम